يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ رمضان کے حوالے سے اللہ تعالی نے گفتگو کرتے ہوئے درمیانی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا ذکر کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے دعائیں کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بحمد اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم اور آپ تمام لوگوں پر بلکہ پوری انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر سایہ فگن ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں توبہ اور استغفار اور مغفرت کرنے کی، بخشش حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے، چونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ فضائل ہیں اور کچھ مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر طور پر آج کے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروعات کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس شہادہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا تعارف کرایا ہے، اسلام کی پہچان کرائی ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، فریاد رس ہو، غوث اعظم ہو، دستگیر ہو، گنج بخش ہو،
दाता हो, मौत व हयात का मालिक हो, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। पहले इसका इकरार और ऐलान करना और फिर ये गवाही देना कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के सच्चे बंदे और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसी में आगे फरमाया रमज़ान का महीना मिले तो रमज़ान के रोज़े रखना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सबको रमज़ान का महीना अता फरमाया है। चलिए दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला तमाम को, पूरी इंसानियत को अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान का जितने भी अय्याम मिले, 29 मिले या 30 मिले, अल्लाह पूरे रोज़ों को रखने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इस महीना को गनीमत जानो। अल्लाह तबारक व ताला ने हम और आपको अता फरमाया है। देखो कितने लोग दुनिया से चले गए, रमज़ान महीना आने से पहले पहले चले गए। अभी आज की बात है, मेरे इंतहाई मोहतरम उस्ताद मौलाना हकीकुल्लाह सलफ़ी साहब मेरे उस्ताद हैं और उन्होंने मुझे कई किताबें पढ़ाई हैं। आज मेरे दूसरे उस्ताद ने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम्हारे उस्ताद मुंबई गए थे और एक्सीडेंट का शिकार हो गए और कोमा में चले गए। अल्लाह से दुआ करें, इस मिंबर रसूल से मैं अपने उस्ताद मोहतरम के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें शफ़ाए आजिला कामिला नसीब फरमाए। कोमा में चले गए, रमज़ान का कोई रोज़ा नहीं रख सकते हैं और रमज़ान की कोई इबादत नहीं कर सकते। वल्लाह गनीमत जानो मुसलमानों, अल्लाह ने अता फरमाया है, एक एक लम्हे की कदर करो इंशाअल्लाह तबारक व ताला। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। देखो रमज़ान आया है, रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ने अता फरमाया है, ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे ऐसा अमल बतलाइए जो अमल मैं अंजाम दूं और अल्लाह की जन्नत में चले जाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला इदला लहू। एक रिवायत में कहा गया फ़इन्नहु ला मिस्ला लहू। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान के रोज़े रखो, इस जैसा अमल कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। एक और रिवायत है, मैं सरसरी बात कर रहा हूँ, जिसमें प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे ऐसे आमाल की खबर कीजिए जिस आमाल को मैं अंजाम दूं अल्लाह की जन्नत में जाऊं। आपने फरमाया अंत अबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैया व तसूम रमज़ान, इबादत अल्लाह की करो, मुझे यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर नबी और रसूल तस्लीम करो। अल्लाह रमज़ान का महीना अता करे तो रमज़ान के रोज़े रखो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से। बातें बहुत सारी हैं, कुछ और बातें करेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत का जो दिन होगा ना, ये बड़ा अजीब व गरीब दिन होगा। ये अलग मसला है कि यहाँ लोगों ने बड़े दावे कर रखे हैं। किसी ने कहा है कि हम अपने सारे मुरीदों को बख्शवा लेंगे। एक शख्स ने यहाँ तक दावा किया मैं जहन्नम के ऊपर खीमा लगा दूंगा, जब तक सारे मुरीदों को निकलवा नहीं लूंगा मैं खीमा हटाऊंगा नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। किसी ने कहा गौस का दामन पकड़ करके मचल जाएंगे, अमल करें या ना करें, रोजा रखें या ना रखें, नमाज पढ़े या ना पढ़े, गौस का दामन पकड़ लेंगे, मचल जाएंगे और अल्लाह की जन्नत में चले जाएंगे। लोगों ने ना जाने कैसे कैसे दावे करे हैं। इन दावे को बयान करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मैं आपके सामने मिंबर रसूल पे खड़े होकर के ये बताऊंगा कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के हवाले से क्या मंजर कशी की है। एक बार की बात है, सुनन तिरमिज़ी वगैरह में रिवायत आई है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपन गौर से सुनना, ऐसा ना हो कि ठंडी छाँव में अच्छी सी नींद आ जाए और ठंडी का फ़ायदा उठाते हुए हम और आप दूसरी दुनिया में चले जाएं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, आप मेरे साथ रहें। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे मुबारक माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में रख करके आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। बीवी आयशा हैं, शौहर को तकलीफ ना हो, आराम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिटाई हुई हैं। इतने में क्या हुआ, क़यामत याद आई माई आयशा को। सुभान अल्लाह। यहाँ लोगों के दावे देखो, लोगों ने दावे कर रखे हैं सबको बख्शवा लेंगे, सबको जहन्नम से निकलवा लेंगे। मुसलमानों सुनो, हमारी तुम्हारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह
अन्हा का आलम क्या है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गोद में सर रख करके आराम फरमा रहे। माई आयशा को क़यामत का दिन याद आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा हैबतनाक, बड़ा हवलनाक, बड़ा अजीब व गरीब दिन होगा वो। कुरान की आयत पढ़े रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाइयों। माई आयशा को क़यामत का दिन याद आ गया। सुभान अल्लाह, वो आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे। आंसू का कितना गिरा, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर आपकी आंख पट से खुल गई। आपने कहा आयशा क्यों रो रही हो, क्या बात है, रोने की वजह क्या है, कोई तकलीफ है, घर में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, रोने की वजह क्या। माई आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह एक बात मुझे आप बताइए, आप मुझको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। देख रहे बीवी का अंदाज देख रहे। कहा आपको मुझसे प्यार है। बोले आयशा ये भी कोई सवाल करने की वजह है क्या। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। माई आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह तो क़यामत के रोज आप मुझे याद करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी नजात की फिक्र है, मेरे कुछ काम आएंगे, आप मेरे शौहर भी हैं और अल्लाह के नबी और रसूल हैं। माई आयशा ने कहा, माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस सवाल पर प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने कहा आयशा कल क़यामत के रोज, तवज्जो मेरी तरफ, मेरी उंगलियां देखो, कहा कल क़यामत के रोज 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। आयशा वो दिन होगा, सुभान अल्लाह, 3 मकामात होंगे, जाओ तलाश कर लेना। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ लेना। वो 3 मकामात हश्र के मैदान में ऐसे आएंगे जहां हर कोई किसी से भागेगा, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। नबियों को अपनी फिक्र, औलिया को अपनी फिक्र, सलाहा को अपनी फिक्र, शोहदा को अपनी फिक्र, आलिमों को अपनी फिक्र, नादानों को अपनी फिक्र, शौहर को अपनी फिक्र, बीवी को अपनी फिक्र। एक नेकी मिल जाए मैं जन्नत में चली जाऊं, बीवी कहेगी, शौहर कहेगा एक नेकी मुझे मिल जाए मैं जन्नत में चला जाऊं। सुभान अल्लाह। ऐसे माहौल में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सियामु वल कुरान युशफ़िआन लिल अब्द यौमुल क़ियामा। 2 चीजें आएंगी तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, तुम्हारे लिए 2 चीजें आएंगी, सिफारिश करेंगी, वो 3 मकामात पर तुम्हारा साथ देंगे। सुभान अल्लाह। उन 2 चीजों में एक है रोजा रहेगा। क्या रहेगा? रोजा रहेगा। अस्सियाम वल कुरान युशफ़िआन लिल अब्द यौमुल क़ियामा। रोजा आएगा, आकर के अल्लाह के दरबार में कहेगा ऐ परवरदिगारा, ऐ परवरदिगारा, ये बंदा था सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक अल्लाह तेरे लिए भूखा रहता था, प्यासा रहता था, जायज ख्वाहिशात भी पूरी नहीं करता था। फशफ़िअनी फी, ऐ अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला रोजे की सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमाएगा। कुरान आएगा, कहेगा परवरदिगारा ये बंदा रात की तारीकी में उठ करके कुरान की आयतों को पढ़ता था, तिलावत करता था, याद करता था, माना मफहूम समझता था, ऐ अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ये कुरान की आयत जो आप पढ़ते हैं मामूली समझा है आपने, सुनो कुरान के एक हरफ पर अल्लाह तबारक व तआला कम से कम 10 नेकियां, कितनी? 10। और अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ है। क्या है ये एक नहीं है। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। अलिफ लाम मीम अगर आपने पढ़ लिया अल्लाह तबारक व तआला कम से कम आपको 30 नेकियां अता करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाइयों कुरान सिफारिश करेगा ऐ मेरे परवरदिगारा ये बंदा रात में उठ करके कुरान की तिलावत, फजर बाद कुरान, असर बाद कुरान, इशा बाद कुरान, सफर में कुरान, हजर में कुरान, जहां देखो इसकी जुबान पर कुरान रहता था। ऐ अल्लाह तबारक व तआला इसकी सिफारिश फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश कबूल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे भाइयों ये रमजान का महीना अल्लाह ने अता किया है टेलीविजन देखने के लिए नहीं, लूडो खेलने के लिए नहीं, सीरियल देखने के लिए नहीं, गाने सुनने के लिए नहीं, तमाशा बनाने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, गाली गलौज के लिए नहीं, बदतमीजी के लिए नहीं, खुराफात के लिए नहीं, दंगा मचाने के लिए नहीं, आतंक मचाने के लिए नहीं। ये रमजान का महीना अल्लाह ने अता किया है मग़फ़िरत कराने के लिए। किस लिए? बख्शिश कराने के लिए। अपनी गर्दनों को जहन्नम से आजाद कराओ।
अपने बख्शिश का सामान तैयार करो। अल्लाह तबारक व तआला ने यह महीना इसलिए अता फरमाया है। मेरे भाइयों, ये मैं आपको क्या बताऊं, जल्दी में दो बातें करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप इस्लाम ने फरमाया मन अफ्तरा यौमन मिन रमज़ान बिला उद्रिन वला मरदिन लम युक़दिही सियामु दहर व इन सामहु। आप इस्लाम ने फरमाया, अगर किसी आदमी ने, गौर से सुनना, अगर किसी आदमी ने एक रोजा भी बगैर किसी उज्र के और बगैर किसी मर्ज के एक रोजा भी अगर कोई आदमी रमजान का छोड़ देगा, याद रखो सारी जिंदगी रोजा रखेगा, अल्लाह की कसम वो सवाब नहीं पा सकता है। अफसोस होता है, 40 साल का है, हट्टा कट्टा नौजवान है, तंदुरुस्त है, तवाना है, मजबूत है, ताकत और कुव्वत का मालिक है, मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऐसे मर्दूद को रमजान का रोजा रखने की तौफीक नहीं है। दुआ करें अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों। हमारे अपने मुसलमान बच्चे, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 10 साल की लड़कियां हमारे घरों में, आपके घरों में रोजा रखती है और आप जवान होकर के रोजा नहीं रखते, पर्दे गिरा करके मुसलमान खाते हैं। और अब ये हया भी खत्म हो गई। पहले लाल कपड़े गिरा करके खाते थे ना, वो लाल कपड़े भी चले गए। ऐसे बेगैरत हो गए हैं मुसलमान, खुलेआम सड़कों पर रमजान का रोजा तोड़ करके खाते हैं। शर्म नहीं आती है तुमको? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सुनो, एक रिवायत पेश करके बात आगे बढ़ाऊंगा। प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह फरमाते, मैं सोया हुआ था। क्या हुआ था? सोया हुआ था। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के ख्वाब ये वही पर मबनी होते हैं, सच्चे ख्वाब होते हैं। आपने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मेरे पास 2 फरिश्ते आए, दोनों ने उठाया, कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मैं चला। कहते हैं पहाड़ की चोटी पर मुझे लेकर के गए, मेरा हाथ दोनों फरिश्तों ने पकड़ा, मेरे बाजुओं का सहारा दिया, पहाड़ की चोटी पर मुझे लेकर के गए। मैं जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, मैंने देखा चीखो पुकार की आवाज आ रही है, जुबान काटे जा रहे हैं, होठ काटे जा रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे। मैंने कहा कि ऐ मेरे फरिश्तों, ये बताओ ये कौन लोग हैं? पहले ये बताओ ये किस उम्मत के हैं? फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए, आमीन बोलो। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के हैं। अल्लाह के हबीब ने कहा जुर्म क्या था? कहा कि ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, जुर्म ये था, ये वक्त से पहले इफ्तारी कर लेते थे, जोहर तक रोजा रखते थे, तोड़ देते थे, असर तक रखते थे, तोड़ देते थे, मगरिब आते आते निढाल हो जाते थे और रोजा तोड़ देते थे, रोजा पूरा नहीं कर पाते थे। ये उनका हाल है। और जो नालायक, जो अहमक नबी का उम्मती होकर के, नबी का पैरोकार होकर के पूरा दिन खा रहा है, पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, ऐसे इंसान का आलम क्या होगा? तौबा करो मुसलमानों, अल्लाह की कसम है। आज 4था रोजा है, रमजान का 4था रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजर पार कर रहे हैं, आधा दिन हमने पार कर लिया है। दुआ करें पूरा रमजान अल्लाह ताला हम सबको बगैर किसी मर्ज के और उज्र के अल्लाह तबारक व तआला तंदुरुस्ती के साथ, तवानाई के साथ अल्लाह ताला रमजान का रोजा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे खुशी होती है, हमारी उम्मत की माएँ बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सेहरी वो बनाए, इफ्तारी वो बनाए, बच्चों को स्कूल वो भेजे, तैयार वो करे, यूनिफॉर्म वो धुले, तुम्हारे कपड़े वो धुले, तुम्हारी खिदमत वो करे, और रोजा रखती है। सुभान अल्लाह बोलो, वो रोजा रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हमारी माएँ बहनें, इन्हें सलाम है, सारा दिन सारी रात तुम्हारी खिदमत में रहती हैं, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करती हैं। आज इफ्तारी में यह होना, आज सहरी में यह होना, वो बेचारियां तुम्हारे डर की वजह से, और मोहब्बत कह लो, क्या कह लो, तुम्हारी मोहब्बत भी कह लो ना, हमेशा डराते नहीं हैं, कभी मोहब्बत से भी बोलते हैं। तुम्हारी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी कुर्बानियां देती हैं, फिर भी उम्मत की माँ बहनों को देखो एक रोजा बनी छोड़ती हैं, इल्ला एक की कोई परेशानी आ जाए। दुआ करें अल्लाह इसी खवातीन को सलामत रखे, हमारी बहन बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर कोई गलती में है अभी भी, अगर कोई नादानी में अभी भी है, तौबा करे वल्लाह, और ये आज ये मस्जिद से, इस मस्जिद मोहम्मदिया से अज़्म करके उठे, इंशाअल्लाह मरते दम तक रमजान का जो भी महीना आएगा रोजा रखूंगा इंशाअल्लाह बोलो। और आगे मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं,
14 घंटे पर मुश्तमिल है ये रमज़ान का रोज़ा। 13.5 कह ले, पिछले साल 14 घंटा था, ये साल 13.5 घंटे पर मुश्तमिल है रमज़ान का रोज़ा। बहुत सुकून से आप, एसी लगा हुआ है, नया कालीन बिछा हुआ है, सारी सहूलियात हैं। परेशानी आपको क्या है? परेशानी आपको क्या, वो बताइए आप। सारी सहूलियात है मस्जिद मोहम्मदिया में, आराम से रोज़ा रख रहे। याद करो अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सहराई इलाकों में थे, रेगिस्तानी इलाकों में थे, रमजान का महीना आया, 17 रमजान की तारीख आई, मुशरिकीन से जंग करना पड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह रोजे से है, सुभान अल्लाह, रोजे से है आप। 17 रमजान की तारीख है, गज़वे बद्र है, पहली लड़ाई है मुशरिकीन से, कुर्बान जाए 313 सहाबा है, सारे रोजे से है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें क्या तकलीफ है वो तो बताओ ना, क्या परेशानी है आपको? क्या चीज की सहूलत नहीं है? ठंडा पानी आप पीते, इफ्तारी हम सब मिल करके खाते, मैं भी शामिल हूं। दुआ करे अल्लाह सब खाएं, आमीन बोलो ना, सब खाएं। अल्लाह खिलाने वालों के माल में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। एक कालीन नया नया बिछाया गया है, देने वाले के लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में बरकत नसीब फरमाए। आइंदा जुमा आने से पहले नया मिंबर भी आ जाएगा इंशाअल्लाह, जिसने भी बनवाया है दुआ करे अल्लाह उसके माल में बरकत नसीब फरमाए। माइक नया सिस्टम आ गया है, क्या परेशानी है आपको? आइए इबादत कीजिए, बंदगी कीजिए, शुक्र अदा कीजिए, जाइए अपने अपने घरों को, वहां भी इबादत कायम कीजिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी रमजान के रोजे रखेगा, सुभान अल्लाह, 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 ईमान। कोई गैर मुस्लिम, याद रखो, कोई गैर मुस्लिम पूरी जिंदगी भर रोजा रखेगा, एक भी रोजा कबूल नहीं होगा। रोजा कबूलियत के लिए 2 बुनियादी शराइत हैं, एक ईमान होना चाहिए और दूसरा नीयत होनी चाहिए सवाब की। किसकी? डर कर नहीं, लालच में नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बिरादरी क्या कहेगी, कुंबा कबीला क्या कहेगा, खानदान क्या कहेगा, ना। रोजा रखे 2 बुनियादी चीज होनी चाहिए, ईमान और अकीदा होना चाहिए अल्लाह पर, और इसलिए रोजा रखो कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला ने फरमाया उस आदमी से बड़ा कामयाब कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला नारे जहन्नम से बचा ले और अल्लाह की जन्नत में दाखिल फरमा। सुनिए, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया, इतने पन्ने लिख करके लाता हूँ आपसे बोलने के, वल्लाह ये तफसीर में भी यही हाल है और जुमा में भी यही हाल है, लिखते लिखते मैं थक जाता हूं और बोलने के लिए मौका नहीं मिलता। सुनिए, रोजा एक ऐसी इबादत है, सुनिए आखिरी बात है, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता है। आप बताएंगे मैं रोजे से हूं तब पता चलेगा सच है या गलत है। आप जब बोलेंगे मैं रोजे से हूं तभी तो पता चलेगा। रोजा ऐसी इबादत है, इसका मामला अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। आप अगर किसी को नहीं बताएंगे, किसी को खबर भी ना होगी कि आप रोजे से, यही वजह है अल्लाह ने इतना बड़ा सिला, इतना बड़ा बदला देने का ऐलान किया। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु अमल इब्ने आदम लहु इल्ला सियाम अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इनका सारा अमल इनके लिए है। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है, और अल्लाह ने कहा बदला मैं दूंगा, अपने हाथ से अल्लाह देगा। नमाज का बदला फरिश्तों के हाथों, ज़कात का बदला फरिश्तों के हाथों, हज का बदला फरिश्तों के हाथों। रोजे का इनाम देने की बात आएगी, अल्लाह बंदे को बुलाएगा, मेरे बंदे सामने आ, कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, मोमिन अल्लाह से सामने खड़ा होगा, अल्लाह अपने हाथ से देगा। कितना देगा? अल्लाह की एक उंगली पर जमीन आ सकती है, अल्लाह की एक उंगली पर आसमान आ सकता है। अल्लाह जब देने पर आए कितना देगा? मुसलमानों, छोड़ोगे रमजान का रोजा एक भी? वादा करो, नहीं बोलो इंशाल्लाह, नहीं बोलो, नहीं इंशाल्लाह बोलो, एक भी रोजा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने कहा मैं अपने हाथ से बदला दूंगा।
अल्लाह ने कहा मैं अपने हाथ से बदला दूंगा। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया रोजेदार को दो खुशियां हासिल होती, वालिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को दो खुशियां हासिल होती, इदा अफ्तरा फरिहा, जब इफ्तारी करता तो खुश होता है आज चौथा रोजा मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, बोल दो ना, आज चौथा रोजा मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, कल पांचवा होगा और आने वाले दिन में 30वां भी होगा इंशाल्लाह। रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं, एक जब इफ्तारी करता है और दूसरा कब, वइदा लकिया रब्बा, रब से मुलाकात करेगा, बहुत खुश होगा। सुभान अल्लाह, दुनिया से जाने का कोई गम नहीं होगा, दुनिया से जाने का कोई खौफ नहीं होगा, बच्चों को छोड़ करके जाएगा, बीवी को छोड़ करके जाएगा, रिश्तेदारों को छोड़ करके जाएगा, कोई गम नहीं होगा, अल्लाह के सामने जाएगा, इनामात देख करके दुनिया भूल जाएगा। सुभान, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको रोज़ों का भरपूर बदला अता फरमाए। आगे अल्लाह की भी ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी ला खलूफ फमुस्साइम, यही वजह है अल्लाह की कसम, नबी ने कसम खा करके कहा, और हम कसम बहुत कम खाते हैं, जहां नबी ने खाया वही खाते हैं। कहा अल्लाह की कसम है जिसके कब्जे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, रोजेदार की मुंह की बू, रोजेदार की मुंह की बू, नागवार हवा आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, हम कहते हैं मिसवाक करो, आप कहते हैं मिसवाक करो, हमें आपको पसंद नहीं है, अल्लाह को रोजेदार की मुंह मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इतनी इज्जत देता है, अल्लाह इतना प्यार करता है कायनात में अपने मोमिन बंदों से। एक माँ जितना अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों से प्यार फरमाता है। इसलिए अल्लाह ने, अल्लाह के भी फरमाते, अल्लाह फरमाया अस्सियाम जुन्ना, रोजा ढाल है। रोजा क्या है? ढाल है। मोमिन के लिए किला है, किला। जैसे कोई जंगी आदमी लिबास पहन लेता है, जंगी लिबास पहन लेता है, सुभान अल्लाह, दुश्मनों के वार से बच जाता है, ऐसे रोजा मोमिन के लिए ढाल है, शैतान के हमलों से बचने का जरिया है। मेरे भाइयों, मोमिन रोजा रख ले, शैतान के हमलों से बच जाता। आगे तरबियत देखो, ट्रेनिंग देखो, रमजान या रिफ्रेशर कोर्स है, यह तरबियत का महीना है। ट्रेनिंग कैसी कर रहा है? अल्लाह के भी फरमाया फइदा काना यौम सौम अहदकुम फला वला यसखब, रोजे से अगर कोई आदमी है गाली गलूज ना करे, बदतमीजी ना करे, दादागिरी ना करे, रोब ना दिखाए, डराए ना, धमकाए ना, रोजे से कोई भी आदमी है बेहुदा बात ना करे, बेहुदा बात ना करे, गाली गलूज ना करे, जबान की हिफाजत करे। इंशाअल्लाह रोजा रख करके आप गाली दे, बेहयाई वाली बात करे, बेहूदगी वाली बात करे, सुनो अल्लाह के भी फरमाते हैं फइदा काना यौम सौम अहदकुम, रोजा रख करके अगर कोई आदमी गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, खुराफात कर रहा है, हंगामा कर रहा है, शोर कर रहा है, शोर कर रहा है, आवाज कर रहा है, कहा मल्लम यदा कौल ज़ूर फलैस लिल्लाहि हाजा, रोजा रख करके झूठ, रोजा रख करके धोखा, रोजा रख करके बेईमानी, रोजा रख करके इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, रोजा रख करके फिल्में, रोजा रख करके गाना सुनना, रोजा रख करके लूडो देखना। रोजा रखे हैं जनाब, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा जोहर में उठ रहे हैं, जोहर भी में नहीं उठ रहे हैं, असर में उठ रहे हैं, मगरिब भी नहीं पढ़े, सीधा तरावी में आ रहे। रोजा रख करके नमाजें छोड़ना ना, अल्लाह के भी ने फरमाया कोई हाजत नहीं है, ना तू भूखा रहो ना प्यासा रहो, तेरे भूख और प्यास को अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है। रोज़ा रख करके रोज़ों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से मिल करके दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं हम सब